امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی الزامات منسوخ کر دیے۔ ٹرمپ نے کیپٹل حملے میں ملوث 1500 افراد کو معافی دینے کے آرڈر پر دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی ختم کر دی۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کے آرڈر پر دستخط کیے اور ساتھ ہی مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ کیا۔ اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا انڈیا۔ نیٹو ممالک دفاعی بجٹ میں 5% تک اضافہ کریں۔ یوکرینی صدر روس سے معاہدہ چاہتا ہے۔ بہت جلد روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کروں گا۔ یوکرین میں جنگ کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ پوٹن معاہدہ نہ کر کے روس کو تباہ کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل 75 دنوں تک ٹک ٹاک کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں۔ ٹک ٹاک کی مالکیت سے متعلق معاہدہ ہونا چاہیے۔ اگر میں ٹک ٹاک کی ڈیل کرتا ہوں تو آدھا حصہ مل جاتا ہے۔ ٹک ٹاک سے متعلق آرڈر پر دستخط نہ کرتا تو اس کی قیمت 0 ہو جاتی۔ ٹرمپ کا خطاب۔ ٹرمپ نے دوسری بار امریکہ کی کمان سنبھالی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ ٹرمپ نے امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ امریکی چیف جسٹس جان رابرٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے حلف لیا۔ حلف اٹھاتے ہی امریکی صدر کو توپوں کی سلامی دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد جو بائیڈن سے ہاتھ ملایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا کیپٹل ہل کے روٹنڈا ہال میں انعقاد۔ تقریب میں 3 سابق صدور اوباما، جارج بش اور بل کلنٹن کی شرکت۔ ایلن مسک، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ بھی تقریب میں موجود۔ امریکی صدر کے بچوں ایرن ٹرمپ، ایوانکا ٹرمپ، جیریڈ کرشنر، ٹیفنی ٹرمپ کی بھی شرکت۔ ہال میں آمد پر ڈونلڈ ٹرمپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ منظم جرائم گروہوں کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دیں گے۔ دہشت گرد گروپوں کے خلاف امریکی فوج استعمال کریں گے۔ امریکہ کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ امریکی فوج کو دنیا کی مضبوط ترین فوج بنائیں گے۔ ملکی سرحدوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پاناما کینال کو چین چلا رہا ہے۔ ہم پاناما کینال کو واپس لینے جا رہے ہیں۔ کسی کو امریکہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ رکھنے کا اعلان۔ ڈرل بیبی ڈرل کے نام سے توانائی کی ایمرجنسی لگانے کا بھی اعلان۔ دنیا کے مختلف سربراہان کا ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ روس ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست رابطے کی خواہش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یوکرین کے ساتھ پائیدار امن چاہتے ہیں۔ روسی صدر پوٹن۔ کینیڈین وزیر اعظم کا بھی ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا کینیڈا امریکہ اسی وقت مضبوط ہوں گے جب مل کر کام کریں گے۔ امید ہے ٹرمپ کی دوسری مدت تمام انسانیت کے لیے اچھائی لائے گی۔ طیب اردوان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پیغام۔ سعودی عرب اور ایران کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ صدر اور وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ نئے امریکی صدر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جرأت کے ساتھ سسٹم میں خرابیوں کی نشاندہی کی۔ ٹرمپ نے امریکہ کے سسٹم پر انگلیاں اٹھائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منافقت کی بجائے سچی باتیں کی۔ امید ہے ٹرمپ پہلے 100 دنوں میں چین کا دورہ بھی کریں گے۔ مشاہد حسین سعید کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں سچ بولا ہے کہ امریکن سسٹم کتنا کرپٹ اور اندر سے کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سارا یہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے سارا گند ہوا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا زوال آ رہا تھا، اب زوال کا خاتمہ ہو جائے گا اور میں جنگیں ختم کروں گا، اینڈ آل وارز۔ اور یہ بھی کہا کہ اس سسٹم کی وجہ سے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں اور ان کے خلاف قاتلانہ حملے ہوئے۔
हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात पर जवाब तैयार कर दिया। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। पीटीआई के मुतालबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक नहीं। अदालतों में ज़ेर समाअत मुक़दमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुतालिक अदालतों में चालान पेश हो चुके। GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ। शहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को चौथे दौर में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हुकूमती टीम को राय दे दी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने का खदशा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा, हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमती जवाब तैयार करने की खबरों में सदाकत नहीं। हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं, और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। 7 रोज में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का 2 टोक ऐलान, कमीशन नहीं बन रहे तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई अपने मुतालबात पर कायम है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। हमारी मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर होगी। अमन अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की हलबरदारी के दावतनामे सरकारी सतह पर नहीं आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जिस ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ये वाहिद ट्रस्ट है जो रजिस्टर ही नहीं हुआ। सैकड़ों कनाल अराजी किसी ट्रस्ट नहीं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाम है। इरफान सिद्दीकी का इंकशाफ, अरकार ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई। ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। मुल्क भर में हज़ारों मदारिस रजिस्टर्ड हैं। किसी दीनी मदारिस को बंद नहीं किया जा रहा। हमारी किसी इदारे से कोई दुश्मनी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, बानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान की डेस्क पर जाकर शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन महबूब शाह ने कॉलम की निशानदही कर दी। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉक आउट। उमर अयूब ने अलकादी ट्रस्ट केस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सजा के खिलाफ हम आला अदलिया में जाएंगे। हसन नवाज से पूछा जाए वो 40 अरब बरतानिया कैसे ले गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में आईन और कानून को रोंदा जा रहा है। मजीद सियासी जमातों से राब्ता कर रहे हैं। असद कैसर। खुद उन्होंने कहा हुआ है चेयरमैन पीटीआई ने कि मुज़ाकरात केस का जो है फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। अब तो उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं। आ गई है ना? जी बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? उनका मकसद था कि एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने का, वो पहुंच गए हैं। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गई है। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है। पीटीआई का बयान आ गया है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हुए तो बानी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। बानी ने खुद कहा कि केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है कि जो बच्चे इनके वरगलाने में आ गए पहले, मुझे तकलीफ है। आज वो कहाँ पड़े हैं? आज वो जेलों में हैं।
कभी किसी के बहकावे में मत आना। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं, हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पाकिस्तान की इज्जत के रखवाले हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, हम डंडा बरदार नहीं इल्म के बरदार हैं। मेरी हुकूमत हो या ना हो ये मुल्क मेरा ही है, ऐसा नहीं हो सकता मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दो, तोड़ दो, मार दो। बहकावे में आने वाले जेलों में बैठे हैं, जेलों में पड़े बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है, जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं वो झूठ का सहारा लेते हैं। मुखालिफिन कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्लांटेड है, मुखालिफिन झूठ में ही पले बड़े हैं। बहुत जल्द लैपटॉप और ई बाइक्स लेकर आऊँगी, किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप दिया तो इस्तीफ़ा देकर घर चली जाऊँगी। हम मोटरवेज का जाल बिछाते हैं, मुखालिफिन मोटरवेज ब्लॉक कर देते हैं। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि पंजाब में तरक्की कैसे हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा से भी तलबा की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी मुफाद में तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शहादा पर हाज़री। GHQ आमद पर ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को चौकर चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से PIA की पहली परवाज़ 503 गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर तैयारे को वाटर कैनन सलूट पेश किया गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पहली कमर्शियल परवाज़ का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फूल पेश किए। न्यू गवादर एयरपोर्ट का 3.6 किलोमीटर तवील रनवे बड़े तैयारों के लिए मौजूद। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग तैयारे लैंड कर सकेंगे। 430 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुज्जाज किराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हज की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा इजलास। हुज्जाज किराम अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंतबाह। CDA के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की मेहमानों के लिए आलमी मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। NHA कौमी शाहराहों मोटरवेज़ पर हिफाजी इक़दाम पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर के काम का जायज़ा लेने के लिए स्टेयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शाहराहें कौमी तरक्की और मुल्की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी बरादरी गजा में इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल करे। दो रियासती हल UN चार्टर के बुनियादी उसूलों पर मबनी होना चाहिए। गजा की सूरत हाल इसराइल की जारहियत की इजाज़त देने के नतीजे में हुई है। जंगबंदी कुछ माक़बल तय हो जाती तो हज़ारों जानें बचाई जा सकती थीं। उम्मीद है जंगबंदी माहदे के तमाम मराहिल मुकम्मल तौर पर नाफिज होंगे। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। 15 माह की कत्ल गारत के बाद गजा में जंगबंदी। गजा में फ़लस्तीनियों की पहली पुरसकून रात। बमबारी का डर ख़त्म। कई ख़ानदानों की तवील जुदाई के बाद अपनों से मुलाकात। बेघर फ़लस्तीनी ज़रूरी खुराक और तिब्बी इमदाद की फराहमी के मुंतज़िर। जंगबंदी के दौरान रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त। 90 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रिहा। शानदार इस्तकबाल। 3 इसराइली ख़वातीन कैदी भी घरों को पहुँच गई। माहदे के मुताबिक 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। दूसरे मरहले में 33 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली जेलों से 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को वापस गजा लाया जाएगा।